Hi, good morning, everyone. Welcome to our live stream. My name is Suhail. Uh, One request: if you are watching this live stream, then I'd request you to share with your friends if you believe this stream can help your friends in some way. Um, Today we are here to discuss a very interesting topic. Basically, the topic is how to crack an interview. If you are already in the job market, or if you're a fresher, fresh out of college, then you already know how difficult it is, how competitive it is to crack an interview. Because for a single position, there will be multiple applicant, and if you go to an interview room, you see for a single position there will be like 15, 20 in a private company, or if it is a government job, you see there are a lot of other like lot of competitors, right? So a company cannot hire all the person they call for. So everybody, whatever is their basic selection criteria, like educational qualification or number of experience they have in their job, based on that they call their candidates. But their positions may be only one or two, but they cannot hire all the people. Now, the hiring manager or the HR manager who takes the face-to-face interview is a very difficult job for him to select the right candidate. So it is not always like if somebody has 85% and somebody is 84%, he's going to hire the 85%. He wants to extract the quality or skill which is required for the benefit of his own company, right? So he will always hire the right candidate. But in an interview which lasts for only 15 to 20 minutes, how does a hiring manager or the interviewer, how does he judge that he is the right candidate? यही मेरे लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट है. कैसे उनको पता चलता है कि इनको ही जॉब का ऑफर देना है? So for that, uh, to discuss all this, we have with us today Mr. Saket Sharma, जो एक प्रोडक्ट मैनेजर है, right? And he has been in the industry from last 10 years, for a decade, and he has been hiring a lot of people recently, and he has been interviewing a lot of candidates as well. So हम उनसे पूछेंगे कि when he is interviewing so many candidates, how does he select the right candidate for his company? So let me uh, welcome Mr. Saket. Hi, Mr. Saket. Good morning, Sohail. Good morning, Sohail. Hi. Thank you. Thanks for the nice introduction and thanks for inviting me here. So, I think आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही it's very near to my heart also क्योंकि obviously हम as a company के stakeholder best candidate ढूंढना चाहते हैं and market में there are candidates who want to understand okay what happens the other side of the table like जब आप वो interview देने आ रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं. So this is a very nice topic, and I hope I can contribute to and help my with my inputs to people to crack some interviews. Hopefully, so looking Yeah. forward to that. All right. Thanks, Mr. Saket. So, for the benefit of our viewers, so I'll just like to introduce yourself more elaborately, like give them your profile, what you have been doing, and how did you reach in this position. आप यहाँ पे Sure. कैसे पहुंचे? आपका एजुकेशन क्या था जी बेसिकली? ये सब के जी बारे में थोड़ा जी बोलेंगे. जी 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 थैंक यू आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड टोंक राजस्थान में एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है इवन राजस्थान के लोग जनरली उससे कोरिलेट नहीं कर पाते सो आई माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर हिंदी मीडियम स्टूडेंट सब नॉर्मल एज एन इंडियन नथिंग लाइक कि बहुत थ्रू आउट एंड थ्रू इंग्लिश मीडियम स्टडिंग चैलेंज थे चैलेंज समझते हुए आई मूव्ड अहेड वेंट फॉर कोचिंग क्योंकि कोटा की विसिनिटी में रहने में आपको रहता है कि आपको आईआईटी करनी है आपको आगे क्रैक करना है तो वो सारी चीजें माइंड में थी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट था थोड़ा बहुत बट मोस्टली हिंदी मीडियम एंड वो सारी चीजें ही सिर्फ मेरा बैकग्राउंड थी देन मैं जब कोटा पहुंचा तो लगा कि अच्छा जो आपने 10th और 12th तक पढ़ा है वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है और एंड दिस इज डिफरेंट प्ले ग्राउंड ऑट ऑल Yeah.
यहाँ पे बहुत बड़ा टैलेंट ग्रुप था। अगेन वही सिचुएशन में जब आप एक इंटरव्यू क्रैक करने जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपका ओपोनेंट आ रहा है, आपके कंपटीशन में कौन कौन है। सेम गोज इन कोटा, सो दैट वाज फर्स्ट लर्निंग। उसके बाद फिर धीरे धीरे आईआईटी में गए। दो फेल्ड अटेम्प्ट हुए मेरी लाइफ में। मैं ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आई डिडंट इवन क्रैक स्क्रीनिंग, सेकंड टाइम स्क्रीनिंग क्रैक हुआ बट मेंस क्रैक नहीं हुआ, बट स्टिल था कि ठीक है, करना है, इंजीनियरिंग करना है। सो आई वाज क्लियर अबाउट वन थिंग कि आई हाउ आई वांट टू मूव माय at least my graduation, after till graduation, not after that. तो एक बीटेक कॉलेज में ज्वाइन किया समवेयर इन केरला। कॉलेज नेम वाज क्यूसैट। डिड माय बीटेक इन आईटी। गॉट एक्सपोज्ड वहां पे, पहला एक्सपोजर मिला, मतलब लाइक अनकंफर्टेबल सिचुएशन, घर से दूर, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट काइंड ऑफ, बट फिर भी एक कंफर्ट लेवल वहां पे खुद के लिए जनरेट किया। देन स्टार्टेड माय जर्नी, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, बट देन फिगर आउट कि यार कुछ और करना है। तो क्या करना है, कुछ और, कि चलो कुछ मैनेजमेंट में करते हैं, बिकॉज आई वाज गुड इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, टॉकिंग टू पीपल, Okay. अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट कर पाता था मैं। देन आई डिड माई Okay. एक्सेलराई से एमबीए। सो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा था। ऑब्वियसली नॉट लाइक ऑल ब्राइट, फेलियर्स थे, लर्न किया एंड मूव्ड अहेड। सो दिस इज हाउ आई। Okay. So currently, like you have been, आप बहुत सारे startup and big brands के साथ भी जुड़े हुए हैं. Like you have been, you have worked in Walmart also, and जी currently, yeah, आप current क्या कर रहे हैं? Basically, what you have been doing तो recently? जी, तो मेरी जर्नी वही काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। एज यू सेड वॉलमार्ट एंड बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनीज के साथ मेरा एसोसिएशन था। राइट नाउ आई एम हेडिंग a 20 plus team in a company called Jasda. So Jasda is a supply chain logistic company for a very bigger group called Foxconn. Okay. So any Apple product you see, आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, फोन, लैपटॉप, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन करता है। उसका एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ग्रुप है, लाइक ऑलमोस्ट 5,000 प्लस पीपल। उसके अंदर जस्टा इज इटसेल्फ इज ए कंपनी। आई एम हेडिंग द प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पीस इन इंडिया फॉर दैट Okay. कंपनी। So this is how I am. So we my journey is completely related to technology, product management, and all of that. Okay, that's very nice. So basically, we contacted you to know कि अभी बहुत सारे फ्रेशर्स थे, अभी कोविड-19 सिचुएशन के कारण भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे हैव इन देयर माइंड्स कि जॉब मिलेगा कि नहीं आगे जाके, और कितना कंपटीशन होगा। अभी जैसे जॉब थोड़ा कम हो गया है कंपनीज में, दे स्टॉप हायरिंग, और देयर हायरिंग दिस ड्राइव इज डिक्रीज बेसिकली। सो बेसिकली ये हम लोग जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आ रहे हैं लोग, who they are just going to get graduated already or going to get graduated in next year. So they have this question in their mind whether I'm going to land in a job, whether I'm going to get a job in some, mostly information technology, you know that क्योंकि जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस और कोई साइंस कॉलेज से पास होते हैं लोग, तो पहला माइंड ये रहता है कि आईटी कंपनी में जाके हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आईटी इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया, एंड मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर लाइक प्राइवेट, राइट? सो उन लोग के जैसे अभी जब आएंगे, अभी कंपटीशन तो हमेशा से था ही। जैसे एक जॉब के लिए आप देखेंगे 100 लोग अप्लाई करते होंगे एक नॉर्मल एंट्री लेवल के जॉब के लिए, राइट? बट हाउ डज वन मेक हिमसेल्फ डिफरेंट कैंडिडेट फ्रॉम अदर्स? सो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का, फ्रेशर्स का हो या एक्सपीरियंस लोगों का हो, इंटरव्यू लेके आप अपनी कंपनी में प्लेस कर रहे हो, उन लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो एज ए इंटरव्यूअर, जब आपके पास कोई फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो हाउ do you make the selection? Like, how do you know that this is the right person whom I'm going to hire basically? आपको कैसे पता चलता है कि नहीं ये मेरे लिए राइट कैंडिडेट है? कि जैसे 100 लोगों में से या 10 लोगों में से ही हो, आप 10 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं एक दिन में, और 10 लोगों में से अल्टीमेटली 10 लोगों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका होगा, सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड परसेंटेज और व्हाटएवर, पर आपको कैसे पता चलता है कि ही इज द बेस्ट अमंग दिस 10? उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपके नहीं, एक्सपीरियंस के अनुसार से? जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा कि
जनरली आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके दो पार्ट्स में मैं आंसर करूंगा। आपने पहले पूछा कि कुछ एक कॉलेज ग्रेजुएट्स भी इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या उनके लिए भी अगर हम लोग सॉल्व करें, तो एक हम लोग सेग्रीगेशन करेंगे कि कॉलेज ग्रेजुएट्स को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज उनके लिए कॉलेज प्लेसमेंट होगा, समटाइम्स ऑफलाइन इंटरव्यूज होते हैं जो आउटसाइड कैंपस भी होते हैं। और देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो करंट जॉब मार्केट में जो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी जॉब है या एक्सपीरियंस्ड है, वो नेक्स्ट इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, या जब वो जाएं तो क्या उनकी माइंड सेट रहनी चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग इन कोर कि अगर आप लेट्स से किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं लाइक फेसबुक और गूगल, तो ऑब्वियसली दे विल वांट द बेसिक थिंग्स लाइक कि आपको कोडिंग आना चाहिए, आपको आपको जो भी उनकी कोर लैंग्वेज है या लेटेस्ट लैंग्वेजेस है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वी विल टॉक अबाउट कि Yes. आपको जो बेसिक चीज है, जो आपका जेडी आया, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको एक कभी भी ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट्स को जेडी नहीं मिलता है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जनरल प्रिपरेशन होती है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि जब वो 4 साल की ग्रेजुएशन करें या 3 साल की बीएससी कर रहे हो, तब वो नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी कोडिंग सीखें। अगर वो उनका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो कोडिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दें, उस पर ग्रेस्प करें, बट उसके साथ अराउंड सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें सीखें, लाइक डोमेन। अगर उनका इंटरेस्ट रिटेल में है, ई कॉमर्स में है, बैंकिंग में है, मार्केटिंग में है, थोड़ा बहुत उसके बारे में सीखें। शुड बी गुड विद समथिंग लाइक ए बेसिक टूल्स लाइक एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत पावरफुल टूल है। अगर आपको उस पे बहुत इंटरेस्टिंगली, मतलब वो हमें रियलाइज नहीं होता जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, बट कॉलेज के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार वो कैसे नॉर्मल जॉब की लाइफ में हाउ एन एक्सेल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आप वो बेसिक चीजें सीखिए, प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ा बहुत सीख लीजिए। बट आई विल से कि सो आई हैव रिटन समथिंग लाइक यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ वन। यू शुड बी, जब आप कॉलेज में हैं तो आप एक चीज सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्नोलॉजी अगर Okay. आपका फोर्टे है, आप उसके मास्टर बन जाइए, लेकिन आप उसके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें सीखिए। तो ये हुआ कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस दिन आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। जब हम लोग जाते थे, हम लोगों को एक एप्टीट्यूड टेस्ट और उन सबकी प्रिपरेशन करते थे, वो अभी भी कॉमन है, बट आपको एक्स्ट्रा व्हाट इज द वाव फैक्टर आपको करना चाहिए। जब आप 4 साल अपनी ग्रेजुएशन या 3 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज रैंकिंग, उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे आपको सर्टिफिकेशन कीजिए आप, जो कि आज की तारीख में इंडस्ट्री ट्रेंड है। मे बी ब्लॉकचेन का सर्टिफिकेशन, मे बी डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन, ये आपको एक अलग एडवांटेज देते हैं आपके कंपटीशन। आपकी क्लास में अगर 80 स्टूडेंट्स है, आप अगर 2 लोग वो सर्टिफिकेशन करेंगे, कंपनी आपको फिगर आउट करेगी कि यार ये कैंडिडेट मेरे लिए बहुत रेलेवेंट हो सकता है, बिकॉज मेरे को आज रियल लाइफ जब मैं ऑफिस में वापस जाता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मे बी दिस फ्रेशर कैन हेल्प मी विद स्मॉल बिट्स। तो ये आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है अपनी प्रोफाइल में। दिस इज वन थिंग फॉर स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द पीपल हु आर इन एक्सपीरियंस्ड एंड नोज अबाउट कि हाँ कैसे जॉब मिलता है। तो फॉर एक्सपीरियंस पीपल, व्हेन आई सिट द अदर साइड ऑफ द टेबल, जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे साथ दूसरी साइड कोई कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली हम उनका सीवी देखते हैं, हम उनकी कैपेबिलिटीज मेजर करते हैं। वो कैपेबिलिटीज बिट्स बाय बिट्स मेजर होती हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे ही होता है सब कुछ। आपके पास्ट एक्सपीरियंस को आप कितना अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से बैक कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आपने कुछ लिखा है, क्योंकि कई बार फेक भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। एज एन इंटरव्यूअर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस फेकनेस को हटा के रियल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकें। बट वो चीज कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाती है कि वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, इंटरव्यू में सिलेक्शन होना नहीं होना डीमोटिवेटिंग कभी नहीं होता। इट शुड बी ए लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप अपने सीवी में जो आपने लिख रखा है उसको आप अपने वर्क से बैक कीजिए। आप इंटरव्यू में फैक्ट्स के साथ उसको बैक कर सकते हैं क्या, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये कोडिंग इंटरव्यू है तो आप कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में जानिए, जो इंटरव्यू ले रहा है उसके बारे में पहले ही बिफोर इंटरव्यू आप उसकी सारी चीजें समझ के आइए। बात कीजिए लोगों से कि कौन मेरा इंटरव्यू लेगा, उनकी क्या प्रोफाइल है, लिंक्डइन सर्च कीजिए, फिगर आउट कीजिए, एंड देन उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो पर्सन मेरे सामने बैठेगा उसको क्या प्रॉब्लम है। उसको बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम के लिए आप कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर करके जाइए। ये सब बिफोर इंटरव्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगेन वही जो डिफरेंशिएशन आपको क्रिएट करना है। तो आप ऐसे नहीं कि जस्ट आपको कॉल आया ना आप कल उठ के चले गए, आप प्रिपेयर कीजिए उसके बारे में। जब आप इंटरव्यू के अंदर हैं तब आपको क्या करना है, जब आप फेस टू फेस बैठे हैं आप प्रॉब्लम सुनिए। यू शुड बी ए गुड लिसनर। यू शुड नॉट बी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी खत्म नहीं किया इंटरव्यूअर ने और आपने उसका आंसर बोलना शुरू कर दिया। नहीं, अगर आपको कोडिंग का प्रॉब्लम दिया गया आप उसके अराउंड क्वेश्चन पूछिए कि ये कोड, ये जो है, ये एल्गो मैंने मुझे पता है, बट इस एल्गो को मैं रियल लाइफ आपकी प्रॉब्लम क्या है, सो दैट आई कैन रिलेट इट एंड डिजाइन ए मॉडल।
अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आप जा रहे हैं, बिजनेस एनालिसिस में जा रहे हैं, कंपनी के बारे में पढ़िए, डोमेन के बारे में पढ़िए, ट्राई टू कम अप विद सम प्रोजेक्ट कि मैंने इससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट सर्च की, आपका हिस्टोरिकल न्यूज पढ़ी, आपकी ये प्रॉब्लम है, मैं इनके अराउंड आपको सॉल्यूशन, अगेन यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएशन। आप टिपिकल इंटरव्यू की स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। टिपिकल इंटरव्यू में मैं 5 चीजें आपसे पूछूंगा, आप उनका आंसर दीजिए, लेकिन आप कंट्रोल कीजिए, आप उस फ्लो को कंट्रोल कीजिए एज ए कैंडिडेट कि मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप उस कंपनी की प्रॉब्लम से रिलेट कीजिए, जो पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उनसे आप रिलेट कीजिए, उनको समझाइए कि हाउ यू आर प्रिपेयर्ड। एंड आफ्टर द इंटरव्यू, लेट्स से जो हुआ, जब भी आप बैठे हैं, इंटरव्यू हुआ, यस और नो जो भी है, उसके बाद डोंट ओवर थिंक अबाउट इट कि क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट थिंग यू शुड डू इट वंस यू आर एट होम, आप आइए, सारे क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए वो लिखिए, एंड उनके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। जो आपने को लगा आपने सही किया उनके बारे में भी गूगल कीजिए, जो आपने नहीं लगा कि वो गलत किया उनके बारे में भी गूगल कीजिए। ये आपको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करेगा। तो Yeah. ऑब्वियसली 10 इंटरव्यू में फेल होने से अच्छा है 2 में फेल होके तीसरे को क्रैक करो। तो उन 2 में जो फेल हुए उनसे भी आप सीखिए। एंड आई नो लॉट मेनी एग्जांपल्स ऑफ माइन, जब हम लोग फ्रेशर्स थे और ग्रेजुएट में जब जर्नी स्टार्ट की थी, हम लोग यही स्टेप्स फॉलो करते थे। लर्न इट, जो आप सीख रहे हो, अगर आपने नहीं भी क्रैक किया कोई बात नहीं, फेल होता है आदमी, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, but you learn it in self improvement. So for me the key is, if a person can prove that he is self improving within the interview, अगर आप प्रूव कर देते हो तो आई एम वेरी मच इम्प्रूव। आफ्टर द इंटरव्यू ऑल्सो आप अगर आप सेल्फ इम्प्रूव कर रहे हो, यू विल क्रैक द नेक्स्ट इंटरव्यू फॉर श्योर। So it's all about that, matlab you don't take it, you once you before interview you prepare for the company, you prepare for the role, in the interview you relate with the problems, you try to differentiate कि आपने उस प्रॉब्लम के बारे में, नॉट जस्ट कोडिंग, आपने कोई स्मॉल डेमो रेडी किया है, स्मॉल प्रेजेंटेशन रेडी किया है। आफ्टर द इंटरव्यू go back to your home, go back to your study table and learn about it. So these are few things I will try to highlight. Hope I was able to answer uh, more related to what we are experiencing. Yeah, so this is pretty much clear. So what is my takeaway is, before going to an interview, you do a proper research. Like, don't just go interview believing on your luck that okay, trial and error, luck ने काम किया तो job मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. But you need to do a proper research about the company or the job which you are going to apply for or going for an interview. Then you need to always learn from your past failures. So like everybody says, आपका पुराना इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और जिसका सिलेक्शन हुआ, और आप कैसे आपको खुद को पता रहता है कि आपने क्या मिस्टेक किया, राइट? यू स्टैमर, you cannot answer, then you do a mistake, then you know that I did a mistake. If I had not done this mistake, I would have been take this position. So ऐसा प्रॉपर एक रिसर्च करना पड़ता है बिफोर नेक्स्ट इंटरव्यू। सो एक इंटरव्यू में हम अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो उससे जो सीख सकते हैं कि क्या नहीं किया मैंने, और नेक्स्ट इंटरव्यू में जाके मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ, अपने आप को सेल कर सकता हूँ। सो दैट्स वेरी नाइस मिस्टर साकेत। सो एक जेनेरिक क्वेश्चन है, जैसे हर एक इंटरव्यू में देखा जाता है, कोई भी कैंडिडेट हो, एक्सपीरियंस्ड हो या जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, फ्रेशर हो, तो एक क्वेश्चन हमेशा से उन लोगों को पूछा जाता है। सो दे ऑलवेज will ask a question. Mostly it is seen that HR person or the higher level of technical manager, they always ask this question to the candidate. Tell me about yourself. Okay, this is simple what they put in front of the candidate. Tell me about yourself. So what is the expectation? What they expect when they ask you, tell me about yourself? What exactly the interviewer wants to listen from him? This is very generic Sure. question and a lot of conversation around that. So if you can just हाँ focus on हाँ some जी light. Yeah. हाँ जी हाँ जी। आई थिंक टेल मी अबाउट योर सेल्फ में सबसे पहले हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं अपना सीवी पढ़ने लग जाता हूँ कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से पढ़ना। आई थिंक सीवी जो है आपका जो सामने बैठा है, चाहे वो एचआर मैनेजर हो, चाहे इंटरव्यूअर टेक्निकल मैनेजर हो, उसने देख लिया है, तो ही डजंट वांट टू नो अबाउट दैट। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज ऑल अबाउट, जब मैं आपको एज ए कैंडिडेट हायर करता हूँ तो मैं आपको सिर्फ टेक्निकल कैपेबिलिटीज पे हायर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एज ए पर्सन हायर कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज वेयर आप जब मुझसे डेली बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो मुझे पता चलना चाहिए कि एक्स पर्सन कैसा है। अगर साकेत शर्मा हायर हो रहा है तो वो एज ए पर्सन कैसा। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू शो कैस कि वो
सीवी के अलावा क्या है, वो उन्होंने खुद से क्या किया है, उनकी हॉबीज क्या है, उनका उनका हाउ रियल दे आर. So as an interview person, when I'm hiring you, I'm hiring for future. You can tell me that, okay, you are right now focusing on this interview, but your aspirations are like this. So इसी से correlated questions आते हैं. What you want to do after 5 years 10 years? Again लोग उसमें आंसर करते हैं कि मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ. ठीक है, that is okay, that is good to relate it to your professional journey, but tell me about yourself. After 5 years down the line, you should touch your personal, like your other side of the personality also. I focus on few things when I talk to. I try to relax the environment ताकि ये जब ये tell me about yourself question आए तो they can be very free and answer the question. हर इंटरव्यूअर अलग अलग हो सकता है. कई इंटरव्यूअर स्ट्रेस इंटरव्यू में बिलीव करते हैं. I don't believe in that, but that's okay. बट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिर भी फोकस होना चाहिए कि आप अदर देन सीवी क्या है. मैं बिकॉज आपको अपने फ्यूचर के लिए हायर कर रहा हूँ, सो व्हाट यू कैन ऐड वैल्यू. एचआर पर्सन अगर ये पूछ रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो पूछ रहा है इसलिए कि वो ये जानना चाहता है कि जो अगर एक सीवी पे आप फिट बैठ रहे हैं, एक जेडी पे आप फिट बैठ रहे हैं, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं. लेट्स से आपको मैं डेटा साइंस की लिए हायर कर रहा हूँ, बट आप एट द सेम टाइम एक डिसेंट कोडर भी हैं. आप अपना पर्सनल टाइम में आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करते हैं. टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप उस पर फोकस कर सकते हैं. अगर आप एक डोमेन एक्सपर्ट है, लेट्स से आप बैंकिंग के एक्सपर्ट है, मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, बट आप साइड में आप कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज भी करते हैं, किसी एनजीओ के पार्ट हैं, आप उसमें वहां पे थोड़ा सा मतलब सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है, आप उसके बारे में टच कीजिए, जिससे कि आपको अदर साइड ऑफ, जिससे आप एज ए पर्सन मैं आपको समझ सकूं. वो मुझे क्या देता है, वो मुझे ये श्योरिटी देता है कि जब आप एक टीम एनवायरनमेंट में काम करेंगे, जब आप एक टीम में आएंगे, एक कंपनी को ज्वाइन करेंगे, हाउ यू विल रिएक्ट टू द सिचुएशंस. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट वांट टू हायर ए पर्सन हु इज वेरी ऑसम इन कोडिंग बट कांट टॉक टू द टीम मेंबर्स प्रॉपर्ली, क्योंकि वो मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है. एंड वहीं पे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है. जैसे आपने कहा 85%, 84%, आई थिंक परसेंटेज कहीं मैटर नहीं करती है. एक बेसिक फिल्टरिंग क्राइटेरिया के लिए, सीवी फिल्टरिंग क्राइटेरिया के लिए परसेंटेज मैटर करती है, बट आपका एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, एज ए माइंडसेट आपका कैसा है, वो बहुत मैटर करता है कंपनी में ग्रो करने के लिए. क्योंकि जब तक कंपनी का एनवायरमेंट प्रोडक्टिव नहीं होगा, आप प्रोडक्टिव वर्क ना आप कर पाएंगे, ना दूसरों को करने देंगे, ना ही एज ए कंपनी में ग्रो कर पाऊंगा. तो ये बहुत सारी चीजें होती है. एज ए एचआर डेफिनेटली आई विल इवेल्युएट आपकी साइकोलॉजी, की माइंडसेट, हाउ गुड यू आर एज अ टीम प्लेयर. आप वो सारे एग्जांपल टेल मी अबाउट योरसेल्फ में थोड़ा थोड़ा टच कीजिए, नॉट लाइक इट बिकम्स एन एसे ऑफ योर लाइफ. छोटा मोटा टच करके यू कैन मूव फॉरवर्ड. Oh, that's very good insight, Mr. Saket. So Abhi, we're running out of time, but still, I have this question: like, do you have any suggestion for the freshers who are just coming out of college? What things they should focus on? Any particular technology domain or anything, like, because it is a Sure, very difficult time sure. for everybody. Yes. I think COVID has changed पूरा globally. It has changed the landscape, not just job Right. market में, not just for fresher companies के लिए, सबके लिए. Recently हम लोगों ने हमारी, तो I will just go about my company strategy. हम लोग पहले hiring spree पे थे. We were hiring people, but now because some remotely located सब जगहों को सबको freedom देनी है work from home की, so we are going ahead. Mhm. Now what we are thinking is कि we will focus on developing India resource इन अ वे कि हम इंटर्नशिप पे फोकस करें. हम बच्चों को ये बोलें जो कॉलेज में ग्रेजुएट्स हैं कि यू वर्क विद अस. सो जब भी आप कॉलेज फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आप 4 साल की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं या 4 साल की अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, यू ट्राई टू डू एज मच इंटर्नशिप एज पॉसिबल. नॉट जस्ट योर बुक्स नॉलेज विल नॉट हेल्प यू मूविंग फर्दर, योर प्रैक्टिकल नॉलेज विल हेल्प यू. तो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, अगर मैं किसी मेरी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए भी किसी को हायर कर रहा हूँ किसी कॉलेज से, इंडियन लैंडस्केप एंड एजुकेशन बैकग्राउंड इज चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली. अभी वो नहीं है कि सिर्फ आईआईटी में आईआईटी पढ़ाई जा रही है. अभी आपको साथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज पे फोकस करती है. तो मुझे ऐसे कैंडिडेट चाहिए इवन फॉर इंटर्नशिप जिनको प्रोफेशनल नॉलेज तो पता हो. व्हेन आई एम सेइंग प्रोफेशनल नॉलेज, लेट्स से उनको ई कॉमर्स पता हो, जो जब वो ई कॉमर्स का अगर कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उनको बेसिक चीजें पता हो, बट उनको टेक्नोलॉजी भी पता हो. जैसे कि अगर मैं तो जब आप एज ए फ्रेशर हैं, कोविड मार्केट में जा रहे हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी ही मिलेगी, तो आपको ये प्रूव करना है कि मैं पहले तो टेक्नोलॉजी सेवी हूँ,
मुझे बेसिक चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं, लैपटॉप चलाना, प्रेजेंटेशंस करना, ये सारी चीजें। बट एट द सेम टाइम जो मेरा मेरा बैकग्राउंड है, मैं उस कंपनी से रिलेट कर पाता हूँ क्या। तो इंडिया में जॉब मार्केट, हम लोग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री हैं। जब जब जॉब पे इंटरनेशनल एमएनसीज में आता, वी विल नॉट बी इम्पैक्टेड मच। बट दिस इज अगेन ए काइंड ऑफ रिसेशन, 2008 में भी था जब हम लोग कॉलेज में निकल रहे थे। हाउ वी बिल्ड इट आवर सेल्फ, यू क्रिएट एड वैल्यू, एडिशनल वैल्यू। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेन नहीं सीखते हो, आप टेक्नोलॉजी भी सीखते हो। अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तो आप एक्स्ट्रा डोमेन भी Yes. सीखते हो। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा कुछ सीखिए। अगर आप लेट्स से एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए के बाद आप एमबीए में थोड़ा सा टेक्निकल सीखिए कि ये जो चीज मैं सीख रहा हूँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल, रिटेल, ऑपरेशन, इनको इनको टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट, क्योंकि फ्यूचर आफ्टर कोविड एवरी कंपनी इज गोना फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको रिमोटली काम करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करना है। एवरीथिंग विल बी सपोर्टेड बाय Yeah. टेक्नोलॉजी। कोई सॉफ्टवेयर अच्छे बनेंगे, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स अच्छे बनेंगे, कोई चैटिंग टूल्स अच्छे बनेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज नीडेड। तो आप एज ए कॉलेज फ्रेश ग्रेजुएट इन सब चीजों पे फोकस कीजिए कि मैं, मेरी जो डोमेन है, मैं अगर एमबीए कर रहा हूँ, लेट्स से एमबीए फ्रॉम मार्केटिंग, मार्केटिंग करने के बाद मैं मार्केटिंग को टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट करूंगा। आफ्टर कोविड हाउ विल आई मार्केट माई सेल्फ। इन पर्सन मार्केटिंग इज द एज ओल्ड, 100 year old फॉर्मूला जो सब बेचते आ रहे हैं। बट नाउ द मार्केटिंग विल बिकम अ वर्चुअल मार्केटिंग। आप उस पर कैसे कर पाएंगे। आप चीजें सीखिए, आप टेक से भी बनिए। आप अगर मार्केटिंग में जा रहे हैं, आप फाइनेंशियल में जा रहे हैं, आप ब्लॉकचेन के बारे में पढ़िए, आप थोड़ा बहुत अपना टेक बैकग्राउंड पढ़िए। ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज ए फ्रेशर, डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय एनीथिंग, बट prepare every day yourself, prepare for certification, prepare for internship, talk to the network, build a good network. COVID will be the situation, without network we will not be able to survive in future. So आपको अपने पास्ट स्कूल के ग्रेजुएट से, कॉलेज ग्रेजुएट से सबसे नेटवर्किंग कीजिए, समझिए उनसे क्या चल रहा है इंडस्ट्री ट्रेंड, एंड build around yourself in those areas. Yeah, that's very nice talking to you, Mr. Saket. So I think our viewers have got an idea of what to do next and how to crack an interview. So Sure. अगर ये हमारा जो आपका जो advice है, if it can help our viewers to crack the next interview, then our this live session will be a successful one. So बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सारे अपने viewers and to Mr. Saket Sharma who took his time out of his busy schedule and talk to us. So thanks, Mr. Sharma. So take care, stay Thank at you so much. home. Yeah, Thank you. Thank you, thank sir. you. Best wishes to everyone, and hope this initiative helps someone in their life. So thanks for that. Thanks for giving me this platform, because this is very nice. Some interesting questions we discussed. So thank you. Yeah, thank you. Thanks, everyone. Take care. Take care.